हेलो गाइस। तो आज हम हेलो जनरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल्स पढ़ने वाले हैं। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है एंड दिस इज स्पेशली फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? एल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ हेलोजन, जो कि ये होता है, इज अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है Rx. It is classified in 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halides based on the carbon attached to the halogen. Okay. Now reactivity किस पर डिपेंड करती है? Reactivity depends on nature of halogen, structure, solvent and reaction conditions. Okay. So इस पर reactivity डिपेंड करती है. Now preparation of alkyl halides. अब वो क्या होता है? From alcohols using HX, PCl3, PCl5 and SOCl2. ठीक है. From alkenes by addition of HX. Markov and anti-Markov rule. ठीक है. अब Markov rule क्या कहता है? When an unsymmetrical alkene reacts with HX, then H goes to the carbon with more H atoms and X goes to the carbon with fewer H atoms. Okay. Now by free radical halogenation of alkanes, then from carboxylic acid using Hans-Dicker reaction. अब Hans-Dicker reaction क्या कहता है? When silver salt of carboxylic acid is treated with halogen, जैसे कि Br2 या फिर Cl2, it forms an alkyl halide with 1 carbon less and releasing CO2. यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है जहाँ पे CO2 रिलीज हुआ है. Now properties of alkyl halides. तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं alkyl halides की. So सबसे पहले फिजिकल. Generally insoluble in water but soluble in organic solvents. Okay. इसका boiling point increases with molecular mass. Okay. Now chemical properties. Undergo nucleophilic substitution and elimination reaction. Okay. इसका reactivity order यहाँ पे given है and it is very important exam point of view से. Now SN1 reaction mechanism. अब वो क्या होता है? तो सबसे पहले SN1. SN1 stands for substitution nucleophilic unimolecular. Okay. It occurs mainly in 3 degree alkyl halides. Two step mechanism है इसका. पहला है formation of carbocation, जो कि है slow rate determining step. Okay. Attack to nucleophile fast. Rate depends only on alkyl halides concentration. ओके. मैंने यहाँ पे इसका एक रिएक्शन भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ SN1 stereochemical एस्पेक्ट. अब वो क्या होता है? कार्बोकेशन इज प्लानर. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड. ओके. रिजल्ट्स इज रेसमाइजेशन, मिक्सचर ऑफ enantiomers. enantiomers क्या होते हैं? Which have same molecular formula and connectivity, okay, but different in 3D arrangement. Okay, not completely racemic due to ion pair effects. Hope you get it. Now SN2 mechanism. अब वो क्या होता है? SN2 stands for substitution nucleophilic biomolecular. Okay, it occurs mainly in 1 degree alkyl halides. Single step concerted mechanism. Okay, backside attack of nucleophile with simultaneous departure of halide. Rate depends on both substrate and nucleophile. एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ SN2 stereochemical एस्पेक्ट. अब ये क्या होता है? बैकसाइड अटैक कॉजेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके. इट इज नोन एज वर्ल्डन इन्वर्जन. इसको वर्ल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं. लीड्स टू ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन. ओके. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने. ठीक है. हेयर OH minus attacks from the back side, so the configuration changes from R to S. ये देखो यहाँ R से S में change हो गया. Okay, this is inversion of configuration. Okay. Now SNi mechanism. So वो क्या होता है अब? SNi stands for substitution nucleophilic internal. Okay, it is observed in reactions like conversion of alcohols to chlorides using SOCl2. Retention of configuration occurs. रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू इंटीमेट आयन पेयर. ठीक है. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. अब वो क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जो कि है वाटर एंड अल्कोहल, फेवर SN1 रिएक्शन. ओके. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, जो कि है DMSO एंड एसीटोन, फेवर SN2 रिएक्शंस.
Solvents stabilize either carbon cation or nucleophile affecting reaction rate. Okay. Now एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स. अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का दे रखा है. ठीक है. SN1 रिएक्शन शोज टू पीक्स. इसका मतलब टू ट्रांजिशन स्टेट्स. देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं. ओके. SN2 रिएक्शन शोज सिंगल पीक, मतलब वन ट्रांजिशन स्टेट, जो कि यहाँ पे है. Activation energy is lower for more stable intermediates. Okay. Now, substitution and elimination. अब वो क्या होता है? Substitution replaces halogen with nucleophile. Okay. Elimination forms alkene by removal of HX. Okay. Strong base and high temperature favor elimination. Weak nucleophile and polar solvent favors substitution. Now, aryl halides. अब वो क्या होते हैं? Aryl halides have halogen attached to aromatic ring. Aromatic ring मतलब जो air से connected होती हैं. Less reactive than alkyl halides due to resonance and partial double bond character. Okay. इसका example है chlorobenzene, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. Now, preparation of aryl halides. अब वो कैसे होता है? From benzene by electrophilic substitution, जो कि Cl2 या फिर FeCl3 से होता है. From diazonium salts, जिसे हम Sandmeier's reaction भी कहते हैं, using Getamin and Bell-Suchiman reaction. ठीक है. अब Getamin reaction क्या होता है? In the Getamin reaction, an aryl diazonium salt is converted into an aryl chloride or bromide using copper powder एंड HCl या फिर HBr. ओके. ये क्लोराइड ब्रोमाइड इन पर डिपेंड करता है. यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन दी बेल-सचिमन रिएक्शन एंड अराइल डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इंपॉर्टेंट है. ओके. डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव एन अराइल फ्लोराइड. ओके. यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Properties of aryl halides. अब वो क्या होते हैं? First is insoluble in water, high boiling points, resistant to nucleophilic substitution due to resonance stabilization. Okay. Now, nucleophilic aromatic substitution, जिसे हम short form में ऐसे भी लिखते हैं, occurs in presence of electron withdrawing group like -NO2, involves addition elimination mechanism. फॉर्मेशन ऑफ माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स एज इंटरमीडिएट. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड आप ये एग्जाम में भी लिख कर आ सकते हो. एग्जैक्टली. नाउ बेंजीन मैकेनिज्म. अब वो क्या होता है? इट अकर्स अंडर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस. इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड एंड हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इंटरमीडिएट. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट आइदर पोजीशन. यहाँ पे मैंने इनका स्ट्रक्चर भी दे रखा है जो कि आप इजीली एग्जाम में बनाकर आ सकते हो. ओके. नाउ एल्कोहल्स. अब एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स कंटेन -OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन. It is classified as 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. It shows hydrogen bonding and high boiling points. Okay, यहाँ पे मैंने इनका स्ट्रक्चर भी दे रखा है for your better understanding, and आप easily ड्रॉ करके आ सकते हो इनको एग्जाम में. Okay. Now, preparation of alcohols. अब वो कैसे होता है? Hydration of alkenes, reduction of aldehydes, ketones and acids, Grignard reagent reaction, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एंड मेक श्योर कि आप ये तीनों की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ. आपको प्रिपरेशन आना चाहिए. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स. अब ये क्या होता है? सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, एंड ये आपको लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस. ओके. Now, acidic nature and hydrogen bonding of alcohols. Okay, so first is alcohol are weakly acidic. Okay, acidity increases with electron withdrawing groups. Okay, hydrogen bonding causes high boiling point and solubility.
नाउ Bouveault Blanc रिडक्शन, अब वो क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स यूजिंग सोडियम एंड अल्कोहल, ठीक है, उसको हम Bouveault Blanc रिडक्शन कहते हैं. इट प्रोड्यूसेस टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. इट इज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ओके, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इट इज वेरी इजी एंड आप इसको इजीली बना सकते हो. नाउ Pinacol Pinacolone rearrangement, अब वो क्या होता है? एसिड कैटालाइज्ड rearrangement ऑफ विसिनल डायोल्स, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डायोल, ठीक है. यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो. ओके, एंड इट इज इजी एंड आप इजीली बना के आ सकते हो एग्जाम में. ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.